Hello, hello everyone. This side Poonam Grover from Sant Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. This video lecture series, going with lecture number 10, which are came under Unit 2, and for the digital electronics, which are beneficial for your electrical fourth semester students. So, in my today topic, we are cover the various topic, that is parity generator and checker, and the other one is very interesting topic, or also as per the exam point of view, that is called your priority encoders. Clear? So here we clear the meaning. So parity generator and checker, that will be say as if you transmit some bit at the transmitter, that is for even ones, and we can receive the odd ones. So here you can say your parity error will be occur at one bit. Okay, either from 1 to 0 or 0 to 1. Clear? So we can make a parity generator. It means sometimes we can transmit a parity bit with the original bit at the transmitting end, and at the receiving end you can count the total number of ones. If according to that particular parity, it will be receive wrong bit. It means you can send the even bit, you can receive the odd bit, or either you can send the odd bit and you can receive the even bit. So in that case error will be occur. So that error will be checked with the help of your parity checker. So here the detailed study about your parity generator and checker will be discussed in the latest part of the slides. And another point is called your priority encoders. Clear? So that will be set the priority. Uh, if you suppose you can you can dial the number to the same person, and the call of which designation will be appear across the channel, that depends upon its priority. So here, as per your digital electronics, you will be set the priority as per the 0 and 1s. So the topic also clear in the later part of the slides. So here we discuss one by one. So what do you mean by the first is think you can clear about what do you mean by parity bit. The parity generating technique is one of the most widely used error detection technique for the data transmission in digital system. When the binary data is transmitted and processed, data may be subjected to noise, so that कई बार क्या होता है कि जब हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं तो दैट इन्फॉर्मेशन विल बी अफेक्ट अंडर योर नॉइस. क्लियर? तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी नॉइस के इफेक्ट में आ जाती है, तो उसकी वजह से आपके बिट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. So hence the parity bit is added to the word containing data in order to make the ones either even or odd. कई बार क्या करते हैं कि हम अपने डाटा के साथ ट्रांसमिटिंग एंड पे कुछ पैरिटी बिट अटैच कर देते हैं. वो पैरिटी बिट अटैच होगा एज पर मेकिंग द डाटा एज एन इवन, or you can say odd. Clear? So the message containing the data bits along with parity bit is transmitted from the transmitter node and to the receiver node. At the receiving end, the number of ones in the message is counted. आप जो भी है with parity included bit के साथ आप number of ones काउंट करोगे कि अगर वो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो आपके मैच कर जाते हैं एट द ट्रांसमिटर टू रिसीवर, इट मीन्स उसके अंदर कोई एरर नहीं है. अगर उनके मैचिंग में कुछ डिफरेंस आता है, इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, जिसने आपकी बिट को क्या किया है चेंज किया है फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. Clear? So here the parity generator and checker. A parity generator is a combinational logic circuit that generates the parity bit in the transmitter. On the other hand, a circuit that checks the parity in a receiver is called your parity checker. जैसे मान लो सपोज करो मैंने अभी बोला है कि डाटा बिट को जब हम सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, तो हम उसके साथ एक पैरिटी बिट अटैच करके भेजते हैं. वो पैरिटी बिट आपके डाटा को या तो इवन बनाएगी या फिर क्या बनाएगी, ओड बनाएगी. इट मीन्स अगर आप उसके अंदर वन ऐड कर रहे हो तो इवन पैरिटी बन जाएगी. अगर आप उस पैरिटी बिट को जीरो रख रहे हो तो वो ओड पैरिटी होगी. वो डिपेंड करता है कि आपने टोटल नंबर वंस को कैसे काउंट किया है. क्लियर? ठीक है? जैसे आपने डाटा भेजा 0 1 1 1, लेकिन आपने 0 1 1 1 जब भेजा है तो उसके अंदर 1 1 1 के अकॉर्डिंग 3 वंस आ रहे हैं. एक वन क्या है आपका इवन पैरिटी के लिए, एक वन कम पड़ रहा है, तो आपने एक पैरिटी बिट साथ में भेजी है, उसको आपने वन पे सेट करके भेजा, जिसने आपके पूरे डाटा को क्या बना दिया, इवन बना दिया. ठीक है? ऐसे ही सेम फॉर ईयर ओड पैरिटी. ठीक है? और हम रिसीवर साइड पे क्या यूज करते हैं, एक पैरिटी चेकर यूज करते हैं. वो चेक करेगा. ठीक है? A combined circuit or device of parity generator and checker are commonly used in a digital system to detect the signal bit is a single bit error in the transmitted data bit. तो अगर हमें उस डाटा में कुछ चेंज मिलता है, यानी कि जो हमने ट्रांसमीटर से भेजा है और वो आपके रिसीवर से मैच नहीं करता, इट मीन्स क्या होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई बिट जरूर चेंज हुई है फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0. So that will be occurrence of an error. Clear? So the sum of the data bits and the parity bit can be even or odd. In even parity, the added parity bit will make the total number of ones and even.
an amount, whereas the odd parity added bit will make the total number of one is odd. Clear? So the basic principle involved in the implementation of parity circuit is that the sum of odd number of ones is always one and the sum of even number of ones is always zero. Clear? Clear? अगर आपने जैसे मान लो कुछ ओड पैरिटी लेते हो तो उसमें जब भी सम करते हो तो आउटपुट पे वन आएगा, इट मीन्स वो ओड पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब अगर आप इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उसका सम क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। क्लियर? सो दैट विल बी थिंग अकर इन योर एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में क्या होता है कि जब आपकी दोनों बिट सेम होती है, जैसे मान लो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब दोनों बिट सेम है यानी कि 0 0 और 1 1 पे, तब वो इवन पैरिटी के लिए होगा और वो 1 पे सेट होगा। क्लियर? और जब दोनों बिट डिफर हैं तो आपका वो ओड पैरिटी के अंदर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? सो हियर वी डिजाइन द पैरिटी जनरेटर एंड चेक अ सर्किट विद द हेल्प ऑफ योर एक्सोर गेट। क्लियर? सो आल्सो वी कैन से ए बी विद टू इनपुट्स। अगर एबी के अपने 3 इनपुट्स बनाने हैं तो आपने एक एक्सोर गेट थर्ड बिट के लिए और अटैच कर दिया, तो इस तरह से हम सर्किट को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? सो दैट फिनोमेना आल्सो क्लियर विद द हेल्प ऑफ व्हेन यू मेक सम पैरिटी जनरेटर और चेकर with an example. So that will be discussed in the later part of the video. So parity generator, what do you mean by parity generator? It is a combinational circuit that accept an one bit stream data and generates the additional bit that is to be transmitted with bit stream। यानी कि इसने यही बोला दोबारा कि आप क्या करेंगे, अपने ट्रांसमिटेड बिट के साथ एक एक्स्ट्रा बिट अटैच करके भेजेंगे, वो बिट आपकी पैरिटी बिट मानी जाएगी। ठीक है? अगर तो वो आपने इवन पैरिटी बिट को जीरो भेजा है आपने डाटा के साथ, तो आपकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। अगर आपने उस पैरिटी बिट की जगह वन लिख के भेजा है तो आपकी टोटल नंबर ऑफ वंस में पैरिटी बिट क्या होगी, आपकी zero होगी। So in odd parity bit schemes, the parity bit is 1. If there is an even parity of ones, the data bit and the parity bit will be 0. Clear? So that both of the phenomena are reversible with each other. So here we discuss the even both even and odd parity generators, हम दोनों डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मैंने इवन पैरिटी जनरेटर बनाया, तो इवन पैरिटी जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो मैंने 3 बिट का एग्जांपल लिया आपके साथ। ठीक है? तो 3 बिट की जब स्ट्रीम को आप ओपन करोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब आपने ये पैरिटी जनरेटर बनाया है इवन पैरिटी को जनरेट करने के लिए, तो मैंने ये बोला है कि डाटा स्ट्रीम आपकी ये वाली है। ठीक है? ये डाटा स्ट्रीम है और y जो है वो बिहेव एज एन एक्स्ट्रा बिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि आपने इवन के लिए बनाना है तो वही सेम, अगर आपने इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट किए तो ऑलरेडी क्या है, इवन है, उसमें कोई भी वन प्रेजेंट नहीं है, तो सारी जीरो को डिनोट करेंगी, इवन को डिनोट करेंगी, तो आपकी पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो ही शो करेगी, क्योंकि आपने किसके लिए बनाया जनरेटर, इवन पैरिटी के लिए बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट को चेक किया तो इसमें एक वन आ रहा है जो कि क्या शो करता है डाटा स्ट्रीम को, ओड शो कर रहा है। तो उस ओड को इवन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस y को जब पैरिटी बिट साथ में अटैच करके भेज रहे हो तो y की जगह क्या प्लेस करवाओगे, 1 प्लेस करवा दोगे, तो पूरा डाटा क्या बन जाएगा आपका 0 0 1 1। इट मींस आपके इस पैरिटी बिट के ऐड होने से वजह से आपका डाटा स्ट्रीम क्या बन गया है, इवन बन गया है। और वैसे भी आप किसके लिए बना रहे हैं, इवन पैरिटी जनरेटर के लिए सर्किट बना रहे हैं। ऐसे ही सेम अगर आप 0 1 0 भेज रहे हो तब भी इसमें एक वन आ रहा है तो आपकी पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? ऐसे इसमें 2 वन आ रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी इवन है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो पैरिटी बिट क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही सेम 1 0 0 इसमें एक वन आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका ओड होगा, लेकिन बनाना क्या है आपने, इवन, तो आपकी पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 1। तो डाटा क्या बनेगा, 1 0 0 1। इट मींस ये आपका डाटा स्ट्रीम है, ये वाला पार्ट, और ये वाला आपका जो आपने बिट उस डाटा के साथ अटैच करके भेजी है फॉर मेकिंग द डाटा एज एन इवन और एज एन ओड। क्लियर? सो दैट प्रोसेस, जैसे लास्ट में 3 वन आ रहे हैं जो कि ओड पैरिटी, लेकिन बनाना क्या है, इवन पैरिटी, तो हमारी पैरिटी बिट y क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इससे डाटा क्या बन जाएगा, 1 1 1 1। सो हमने क्या किया, एक डाटा के थ्रू पैरिटी बिट y अटैच करके उसको इवन में चेंज कर दिया। तो अगर आप यही फिनोमेना ओड के लिए यूज करते हो तो क्या करोगे, अगर सपोज आपने ओड पैरिटी चेक करनी हो तो जहां आपने 0 प्लेस करवाए हैं वहां 1 प्लेस हो जाएंगे, और जहां 1 प्लेस करवाए हैं वहां क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। क्लियर? सो वैसे भी देखिए अगर आपने ओड के लिए करना था तो ये 0 0 0 तो इवन को शो कर रहा है, लेकिन आपने किसके लिए बनाना है, ओड के लिए बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल डाटा क्या बनेगा आपका, 0 0 0 1। तो 1 एक तो आ गया ना पूरे डाटा स्ट्रीम के अंदर, तो वो क्या शो करेगा, ओड पैरिटी को शो करेगा। तो ये टेबल आपका इवन का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ओड हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे आप, आपकी जो वायर आउटपुट आई है उसके लिए आप के मैप डिरान करेंगे, तो आपकी वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इन डेसिमल फॉर्म, तो वैल्यू 7 आ रही है। इट मींस टू द पावर 3 यू कैन यूज द 3 वेरिएबल्स के मैप। तो आपने 3 वेरिएबल का के मैप यूज किया, उस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या लेंगे आप, एज पर इनपुट दैट इज ए बी सी।
ठीक है, तो आपने ए बी सी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पुट की। क्लियर? आप के मैप के अंदर वो वैल्यू इंसर्ट कीजिए। तो वैसे ही सेम आप कैसे लिखते हैं वैल्यूज को, 0 1 2 3 4 5 6 7, then I put the value at the respective places. तो here we show the one कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 1 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है, और देन 3 पे 0 है, 4 पे 1 आ रहा है। इट मीन्स 1 2 4 और 7, यानी कि 1 2 4 7 पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो 1 2 पे 1 4 पे 1 एंड 7 पे 1। तो ये पार्ट आपका किसी में भी पेयरिंग कवर नहीं कर रहा। तो इस पार्ट, हर एक पार्ट को आप इंडिविजुअल लिखोगे। तो अगर इस वन को देखना है तो इस वन को जब देखोगे तो क्या आएगा, इस साइड से क्या आएगा आपका ए बार, और इस साइड से क्या आएगा बी बार सी। क्लियर? ए बी बार, सॉरी ए बार बी बार सी। तो फर्स्ट लॉजिक आ गया। सेकेंड लॉजिक इस वन के लिए, इस तरफ से क्या आएगा आपका ए बार, और इस तरफ से क्या आएगा आपका बी सी बार। तो सेकेंड बी सी बार। अगेन थर्ड वन के लिए क्या बनेगा, इस तरफ से क्या बनेगा आपका, यहाँ थोड़ा 0 0 0 1 गलत लिखा हुआ है, ओनली 1 बिट लिखेंगे, 0 एंड 1। 0 आपका ए का कॉम्प्लीमेंट शो करेगा और 1 उसका विदाउट कॉम्प्लीमेंट शो करेगा। यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 बिट प्रेजेंट किए हुए हैं जो कि आपके 1 बिट की फॉर्म में होंगे, क्योंकि आपका वेरिएबल ओनली 1 है इस साइड पे। क्लियर? सो ऐसे जब आप इस वन को देखोगे तो इस तरफ से क्या आएगा आपका, ये ए बार था और ये ए था, इट मींस ये ए इधर से, उधर से क्या आया बी सी बार, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड आपको दोनों कवर करने होते हैं। तो ये चीज आ गई। और नेक्स्ट लास्ट के लिए इस तरफ से क्या आएगा ए, और इस तरफ से क्या आएगा बी सी। क्लियर? उसके बाद आप इसे लॉजिक गेट्स के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। तो पैरिटी देखो ध्यान से देखिए क्या बना, ए एक्सक्लूसिव बी exclusive your C, so that will be show your XOR gate logic. क्लियर? सो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आप पैरिटी को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, XOR गेट। और देखो जब आपने कोई भी एग्जांपल्स के थ्रू उसको सोल्व किया तब भी वो किस फॉर्म में आ रहा है, XOR गेट की फॉर्म में। सो वी कैन मेक द पैरिटी जनरेटर सर्किट आइदर फॉर इवन एंड ओड विद द हेल्प ऑफ योर XOR गेट। क्लियर? So here we show the figure. You are as per as your simple calculation, your parity bit is belongs to your A exclusive B exclusive C. Clear? So here we write A as per your figure, A exclusive B, थर्ड बिट को B और C के साथ फिर दोबारा एक्सक्लूसिव करा दिया। तो पैरिटी बिट के लिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, A B C एक्सक्लूसिव। तो आपका डाटा प्लस ये पैरिटी बिट साथ में अटैच, जो उस फिगर में आपने Y की फॉर्म में लिखी थी, यहाँ पे क्या लिखा उसको P लिख दिया। तो अब डाटा बिट के साथ ये पैरिटी बिट जब अटैच करके भेजोगे तो ये एज पर योर डाटा इस पैरिटी बिट की वैल्यू इटसेल्फ चेंज होगी, आइदर फॉर इवन पैरिटी और आइदर फॉर ऑड पैरिटी। क्लियर? नेक्स्ट वी कम विद योर ऑड पैरिटी। तो मैंने पहले भी बताया था कि देखो आप टोटल नंबर ऑफ वेंस चेक करोगे, दैट इज ऑड पैरिटी जनरेटर। ठीक है? तो इसमें 3 जीरोज आ रही हैं। आपने किसके लिए बनाना है, आप ऑड पैरिटी। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए कि आपने किसके लिए जनरेटर बनाना है, आइदर इवन पैरिटी के लिए और आइदर ऑड पैरिटी के लिए। क्लियर? तो मैंने किसके लिए बनाना है, मैंने बनाना है आपका ओड पैरिटी के लिए। ठीक है? तो ओड पैरिटी में आप टोटल नंबर ऑफ वंस चेक करोगे। बाय जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट है जो आपके डाटा स्ट्रीम को या तो इवन बनाएगी या फिर क्या बनाएगी, ओड बनाएगी। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ओड पैरिटी बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे आप टोटल नंबर ऑफ वंस चेक करोगे इन फर्स्ट डाटा स्ट्रीम्स के अंदर, तो वो क्या है 0 0 0। हमने क्या बनाना है, ओड बनाना है, जो कि इवन है। इवन को जब ओड में चेंज करना हो तो आप वन के साथ कर दोगे, एज इन पैरिटी बिट अटैच कर दोगे, तो डाटा क्या करेगा 0 0 0 1। तो वो क्या बन गया, ओड बन गया, क्योंकि टोटल डाटा के अंदर ओनली वन वंस टाइम आ रहा है। क्लियर? सो दैट डाटा विल बी प्रेजेंट योर ओड डाटा। क्लियर? ऐसे सेम 0 0 1 0। क्लियर? 0 0 1 जो कि ऑलरेडी ओड है, वैसे भी ओड के लिए बनाना है, तो इवन पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ये भी ओड है, तो आपने बनाना क्या है, तो ओड पैरिटी को चेंज तो नहीं करना है, लेकिन जो ओड इवन है उसको चेंज करना है, ओड पैरिटी को चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो ओड तो ऑलरेडी है ही है, तो जिसकी जहाँ जो ऑलरेडी है उसकी जगह 0 प्लेस करवाएंगे, और जैसे 0 0 0 1 1 जो कि क्या है, इवन है, बनाना क्या है, ओड है, तो हम पैरिटी बिट क्या लगा देंगे, 1। तो पैरिटी बिट 1 लगाने से डाटा क्या बन जाएगा, टोटल 0 1 1 1। तो डाटा क्या बन गया आपका, ओड में चेंज हो गया, एंड द प्रोसेस विल बी गोइंग अप टू 1 1 1। क्लियर? सो हियर वी आल्सो यूज अ 3 वेरिएबल्स के मैप। उसके अकॉर्डिंग दोबारा फिर मैंने उन वैल्यूज पे यानी कि प्लेस करवाया। तो इससे थोड़ा सा चेंज आया। वो क्या चेंज आया कि ए और बी वो तो दोनों एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं, और बी और सी जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव नोर कर रहे हैं। ठीक है? रिमेंबर दीज थिंग वेरी केयरफुली फॉर द इवन पैरिटी जनरेटर एंड ऑड पैरिटी जनरेटर। तो कई बार जो क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवाए हैं वैसे के वैसे एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप इस चीजों को प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे तो इवन आपको इनके एक्सप्रेशंस के आंसर भी आपको इटसेल्फ क्रैम हो जाएंगे कि किसी पैरिटी जनरेटर के लिए आपका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? ठीक है? तो कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप जब पैरिटी जनरेटर बनाते हो तो उसमें मेनली कौन सा गेट यूज किया जाता है, तो आप मेनली क्या यूज करोगे, आपका एक्सोर गेट यूज करोगे। क्लियर? ठीक है?
तो अब जैसे उसने यहाँ पे किया है, सॉरी, इग्नोर फॉर बोथ, क्लियर। सो उसने क्या किया, वही सेम सर्किट को इग्नोर के थ्रू किया। यहाँ पे ए और बी का इग्नोर हो रहा है, और यहाँ पे सी और वो पैरिटी बिट का इग्नोर हो रहा है, क्लियर। अब जब आंसर में मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, ए इग्नोर बी, क्लियर, देन सी इग्नोर पी, देन सारे का इग्नोर, दैट इज कॉल्ड योर सीपी, क्लियर। सॉरी, नेक्स्ट स्टार्ट विद योर पैरिटी चेक। व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी चेक? वही सेम कि हमने जब, अब जो बिट हमने ट्रांसमीटर एड्स साइड से अपने बिट स्ट्रीम के साथ अटैच करके भेजी है फॉर मेकिंग योर डाटा आइदर एज इवन और ओड पैरिटी, अब उसको चेक करना है कि अगर जो मैंने बिट अटैच की थी उसके बाद डाटा में कोई चेंज आया है नहीं आया, क्लियर। तो जब हम उस चीज को चेक करेंगे, तो अगर वो चीज चेक करने के बाद दैट बिट स्ट्रीम इज नॉट मैच विद योर ट्रांसमीटर, इन दैट केस यू विल बी अकरेंस विद योर एरर। तो वो एरर भी क्या होगा, या तो इवन एरर होगा या फिर क्या होगा आपका ओड एरर होगा, क्लियर। सो इवन पैरिटी चेकर उसने वही सेम बनाया है, जैसे उसने 4 बिट रिसीव किए हैं 0000, जैसे हमने हमने एबीसी वही सेम बनाया था। अब पैरिटी बिट को उस केस में आप वाई मान रहे थे, मैंने उसको पी की फॉर्म में यहाँ लिख दिया साथ में। टोटल बिट कितने बन गए, क्योंकि आपको जो डाटा रिसीव होगा उसके अंदर डाटा बिट प्लस पैरिटी बिट साथ में रिसीव होंगे, क्योंकि आपने पैरिटी बिट जो अटैच की है वो अपने डाटा को इवन या ओड बनाने के लिए अटैच की थी। अब जब रिसीवर पे वो बिट रिसीव होंगी तो पैरिटी बिट भी साथ में रिसीव होगी, तो डाटा क्या बन जाएगा आपका, ए बी सी, एंड द फोर्थ बिट इज कॉल्ड योर पैरिटी बिट। अब आपने ये चेक करना है कि जो पैरिटी चेकर आपने बनाया है वो इवन पैरिटी के लिए बनाया है या ओड पैरिटी के लिए बनाया है। तो फर्स्टली वही, अगर आपने इवन पैरिटी के लिए बनाया है तो पैरिटी चेक की जो सीपी बिट होगी, यहाँ पे उस चीज को चेक बिट को क्या माना है उसने, सीपी बिट। तो अगर वो इवन पैरिटी शो कर रहा है तो वो जीरो होगा। वैसे भी किसके लिए बना रहे हो पैरिटी चेकर, इवन के लिए बना रहे हो, तो वो जीरो होगा। अगर ये बिट देखो 0001 आ रही है, तो वन पे क्या हो गया, वो ओड हो गया, तो ये बिट क्या हो जाएगी, आपने ओड से इवन में चेंज करने के लिए इस बिट को क्या कर दोगे, वन कर दोगे, क्लियर। ऐसे ही अगली बार में फिर वो ओड आ रही है, आपने क्या बनाना है, इवन, तो आपने क्या कर दिया, वन कर दिया। तो इस तरह ये क्या आ रहा है आपका, इवन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या आ रहा है, ओड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा वन। इट मीन इवन के लिए बना रहे हो तो जो बिट आपकी, जो डाटा आपका इवन की फॉर्म में है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ओड की फॉर्म है उसमें रिस्पेक्टिव सीपी प्लेसेस पे क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, क्लियर। तो आप क्या करोगे, अब आपकी टेबल जो है वो 3 बिट की बजाय 4 बिट में एक्सटेंड हो गई, क्लियर। तो ये पैरिटी चेकर किस लिए बनाया है आपने, इवन पैरिटी के लिए बनाया है, क्लियर। सो इवन पैरिटी के अंदर आप अब आपकी वैल्यूज कितनी आ रही हैं एज पर योर सीपी बिट, दैट इज 0110 100, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप कितने का के में वेरिएबल्स यूज करोगे, 4 वेरिएबल्स का, जिसके अंदर वैल्यू क्या लोगे, ए बी एंड सी पी, क्लियर। ऐसे ही आपने उन वैल्यूज को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट करवाया एज पर द वैल्यू ऑफ योर सीपी, ठीक है। दैट थिंग इज रिमेंबर बाय यू कि आपने इनकी वैल्यूज पुट करवानी है। तो वन कहाँ पे आ रहा है, वन पे वन है, टू पे वन है, फोर पे वन है, देन सेवन पे वन है, देन एट पे वन है। वन फोर वन, टू, फोर, सेवन, और वो देख लेंगे हम कैसे हो रहा है। तो हमने उन वैल्यूज को प्लेस करवा दिया रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। तो बाय चांस इसमें भी कोई पेयरिंग कवर नहीं हो रही है तो हम बिट बाय बिट इन वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ए बार बी बार फॉर दैट वन के लिए, और यहाँ पे सी बार पी इसके लिए ओनली, क्लियर। तो इसने उस बिट को डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो चाहे आप पी लिख लीजिए डी की जगह, चाहे डी लिख लीजिए पी की जगह, बोथ आर द सेम थिंग, सिंप्लीफिकेशन के लिए। जब आपने उस हर एक को सिंप्लीफाई किया एज पर दैट एक्सप्रेशन, ये आप खुद करके देख लीजिएगा कि इस एक्सप्रेशन को कैसे उसने मिनिमाइज किया हुआ है एज पर बुलियन अलजेब्रा व्हिच वी कैन डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो। तो उससे बाय चांस आपका क्या बनेगा, कोई सेम एक्सक्लूसिव और गेट यूज होगा। तो अब दोबारा फिर आप इसको गेट्स के थ्रू डिजाइन करेंगे वही सेम, पहले ए बी और देन सी पी, फिर दोनों का फिर इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो दैट इज फॉर योर ओड। अगेन यू कैन कम विद योर ओड पैरिटी चेकर। तो वही सेम आपने जहाँ 000 आ रहा था, तो देखो ये बिट प्लस योर पैरिटी बिट आपकी रिसीव होगी। अब आपने किस लिए बनाना है, ओड के लिए बनाना है, तो ये ऑलरेडी इवन है, तो ओड बनाने के लिए यहाँ क्या कर दोगे, सीपी बिट को वन कर दोगे, और ये ओड है, ओड के लिए तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ऐसे फिर ये क्या है, ओड है, ओड ओड में ही रहेगा क्योंकि वो ओड पैरिटी चेकर है तो जीरो होगा। लेकिन यहाँ ये इवन आ गया, अब इवन को अगर ओड बनाना है तो वन अटैच कर दोगे तो डाटा क्या बन जाएगा आपका, 00111। मीन्स अब वो सीपी जो करेक्शन बिट है, पैरिटी चेक करेक्शन बिट है, वो आपके डाटा को क्या बनाएगी, इवन से ओड और ओड से इवन।
क्लियर। सो इस तरह आप इनको फिर दोबारा फिर के मैप के अंदर पुट करेंगे, और आफ्टर के मैप अगर आप उसको सोल्व करेंगे तो उस केस में सेम, अगर आपने पैरिटी जनरेटर बनाया था वो उसमें एक्सोर, और पैरिटी चेकर बनाया तो उसमें इग्नोर, ऐसे ही सेम पैरिटी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सिंप्लीफिकेशन से, जो सिंप्लीफिकेशन यहाँ मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन आप अगर उसी मेथड से इसे सोल्व करोगे तो आपका ए इग्नोर बी देन इग्नोर सी इग्नोर डी हो जाएगा। तो उसी को आप फिर आप उसी फॉर्म में बना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ योर कैलकुलेशन। तो कई बार ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने पैरिटी जो जनरेटर और चेकर बनाया है उसमें आपने कौन से गेट यूज किए हैं। तो पैरिटी जनरेटर में आपने एक्सोर गेट यूज किए हैं, और पैरिटी चेकर में आपने इग्नोर गेट यूज किए हैं। क्लियर। सो रिमेंबर दीज थिंग इज वेरी केयरफुली। तो एक बार इसे घर पर जाके प्रैक्टिस में लेके आइए इन चीजों को। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो वैसे ही चीजें आपको क्या हो जाएंगी, मोर क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। सो next we can come with your parity generator and checker IC। तो जब ये फंक्शंस इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो आप ये इनकी बनी बनाई आईसीज आती हैं मार्केट्स के अंदर। तो उसमें आईसी का नंबर क्या होगा, 74180। उसमें हर एक बिट की स्पेसिफिकेशन है। क्लियर। कि कौन सी बिट इवन के लिए है, कौन सी बिट ओड के लिए है। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको सेट करोगे। जैसे इसने ABCD अप टू H तक अपनी पैरिटी इनपुट्स ले रखी हैं, कास्केडिंग इनपुट इवन और ओड है, और ऐसे समीशन ऑफ यानी कि आपका पैरिटी बिट एक तरह की इन बिट्स के साथ पे पैरिटी बिट अटैच होकर मिलती है आउटपुट पे। तो उसकी आईसी नंबर कई बार पूछ जाता है कि इवन पैरिटी और जो भी आईसी नंबर होता है वो क्या होता है, 74180। क्लियर। नेक्स्ट वी कम विद योर प्रायोरिटी एनकोडर, जिसको हम दूसरे फॉर्मेट डिजिटल एनकोडर या फिर बाइनरी एनकोडर भी बोल सकते हैं। क्लियर। सो unlike a multiplexer that selects the input data input line and then sends the data to a single output line, but in case of digital encoder, more commonly called as binary encoder, take all its data, its input one at a time, then converts them in a single encoded output. Clear. So we can say that the binary encoder is a multi input combination logic circuit that converts a logical one data at its output and an equivalent binary code of its output. Clear. So उसने ये बोला है कि हम अब इन सभी में डिफरेंस के जैसे लाइक जैसे आपका जो पैरिटी एनकोडर है वो आपके प्रायोरिटी एनकोडर और मक्स में क्या फर्क है कि मक्स में आपकी मैनी इनपुट और वन आउटपुट होती है। क्लियर। तो इसमें लाइक जब एनकोड करते हो तो जो आपकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपकी इनपुट का काम करती हैं। क्लियर। तो आप इस चीज को कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक 4:2 बाइनरी एनकोडर बना रखा है दैट आल्सो शो योर 4:2 बाइनरी प्रायोरिटी एनकोडर भी बोल सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4:2 एनकोडर है तो उसकी 4 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट होंगी। तो जब 4 इनपुट्स में पहली 1 होगी तो वो 0 0 शो करेगा। जब सेकंड 1 होगी इट मींस वो प्रायोरिटी क्या हो रही है, 1 बाय 1 बिट ट्रांसफर हो रही है। क्लियर। सो 0 1 होगी, नेक्स्ट पे 1 0 देन 1 1 एंड देन अगर ये लास्ट में सारी जीरोस होती है तो वो क्या शो करेंगे, आपकी डोंट केयर शो करेंगे। क्लियर। अब ऐसे ही सेम उसने लाइक अगर आपने एनकोडर को तो इस फॉर्म में डिजाइन किया था, लेकिन अगर आप उस बाइनरी एनकोडर को प्रायोरिटी एनकोडर में चेंज करना चाहते हैं तो उसने 8:3 का एग्जांपल लिया है। तो आपकी इनपुट्स क्या है, 8 है। जैसे 1 हुई तो तीनों 0 0 0। उसके बाद ही आप देखो डिकोडर एनकोडर में उसने प्रीवियस बिट 0 ली थी। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी एनकोडर बनाया 8:3 को तो उसमें प्रीवियस बिट वो क्या करता जा रहा है, क्लोज करता जा रहा है। क्लियर। सो आप फिर इन्हीं लॉजिक को, जैसे मान लो आउटपुट कितनी आ रही है, Q0 Q1 एंड Q2, और उसमें आउटपुट कितनी आ रही है आपकी Q0 एंड Q1। तो आप Q0 Q1 और Q2 को के मैप की हेल्प से, जैसे मान लो आप इसके लिए के मैप बनाओगे। क्लियर। Q0 1 Q1 और Q2 के लिए। क्लियर। और उसके अंदर वेरिएबल्स क्या लोगे, फ्रॉम D0 टू D7। तो इसमें Q0 जो है, ध्यान से देखिए, जो Q0 है, Q0 के लिए Q0 जो है वो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, देन 3 पे 1 आ रहा है, देन 5 पे, देन 7 पे। तो Q0 आपका 1 3 5 7 पे 1 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कितने वेरिएबल का के-मैप यूज करोगे, 3 वेरिएबल्स वाला। 7 आउटपुट लास्ट आ रही है आपकी, तो 1 3 5 7 पे आप क्या करवाओगे, 1 पुट करवाओगे। ठीक है। उसके बाद उन उनकी वैल्यूज को Then you can design the K-map for your Q0, Q1 and Q2। तो ध्यान से देखिए आपका Q0 कहाँ कहाँ बना रहा है, 1 पे, 3 पे, 5 पे एंड 7 पे।
तो आप उन वेरिएबल्स को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोप। तो कैसे लिखा गया है इसके अंदर कि मैप की बजाय उसने सिंपल सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो कैसे किया, जो वन वैल्यू है तो वन वैल्यू पे आपकी ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि D1 के ऊपर बार नहीं है, लेकिन D2 से लेकर D7 तक सभी पे बार है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ D7 से D2 तक बार है, देन D1 पे बार नहीं है। देन यू कैन शो द प्लस साइन। नेक्स्ट वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू Q0 के केस में 3 पे आ रही है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3, 3 पे 1 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, D7 से लेकर D4 तक बार होगा, D3 पे बार नहीं होगा। तो ये केसेस हम डोंट केयर वाले मेंशन नहीं करेंगे, ओनली ओरिजिनल डाटा उठाएंगे, क्योंकि पिछला डाटा क्या होता जा रहा है, वन बिट शिफ्ट होने की वजह से वो आपका लाइक डुप्लीकेट बनता जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर वही सेम ये किया D5, देन प्लस। अब आपका नेक्स्ट वन देखेंगे कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट वन आ रहा है आपका इस वाली बिट पे, इस वाली बिट पे क्या बनेगा D6 एंड D7 का बार इंटू में D5, D6 एंड D7 का बार इंटू में D5। और लास्ट बिट के लिए डाटा 1 के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ओनली D7। तो इस तरह आपने उसको लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में एक्सप्रेशन आपका Q0 की फॉर्म में ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही आपने Q1 को जब चेक किया तो Q1 आपका कहाँ कहाँ बना रहा है, 2 3 6 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो 2 3 6 7 पे आ रहा है तो ध्यान से देखिए अपने टेबल के अंदर, 2 2 यानी कि 2 3 6 7, 2 के लिए ये वाला बना, इट मीन्स इसके लिए क्या बनेगा, D7 से लेकर D3 तक बार इंटू में D2। देन 3 पे क्या बनेगा, ये वाला 3 पे क्या बनेगा, D7 से D4 तक बार इंटू में D3। 6 2 3 6, 6 के लिए क्या बनेगा आपका ये वाला, 6 के लिए D7 और D6 का बार, देन 7 पे क्या बनेगा, ओनली D7, ठीक है। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसको सिंप्लीफाई किया, आउटपुट फॉर Q1। ऐसी सेम फॉर योर Q2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको इस तरह लाइक लिखने के बाद उसको हम गेट्स के थ्रू क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। सो दैट शो योर प्रायोरिटी एनकोडर, क्लियर। सो दैट इज अ आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर योर प्रायोरिटी एनकोडर। सो इसमें कुछ वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट आ रखी हैं, तो आप चाहे इन वैल्यूज को लाइक एक गेट्स नोट गेट लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने वो नोट गेट मेंशन नहीं किया हुआ है, उसने एक सिंगल वैल्यू को के अकॉर्डिंग दोनों का काम हैंडल करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बाय जैसे आपको लाइक सिंपल सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ गेट्स करनी आती है, आप वैसे भी इसकी सिंप्लीफिकेशन को नोट कर सकते हैं, क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड योर प्रायोरिटी एनकोडर। सो I think that topic will be clear by you by the use of your priority encoder। And priority encoder में आपको maximum एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। एंड आगे पैरिटी के बारे में मैंने आपको फुली बताया है, तो पैरिटी इवन और पैरिटी जनरेटर या चेकर पे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। सो रीड दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। So at last, thank you very much for listening my lecture।